عزیزو 6 اکتوبر 2025 شام کی عبادت میں آپ سب کو سلام عرض کرتا اور خدا یسوع المسیح کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج کے دن تک ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا ہے، زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم دور اور نزدیک سے جمع ہو کر کے اپنے زندہ یہوہ پاک خدا یسوع مسیح کی عبادت اور ریاضت کر سکیں۔ ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا۔ چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا کہ میری راہ دے وچ ہے او روشنی کردا۔ چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا کہ میری راہ دے وچ ہے او روشنی کردا۔ چراغ ہے چراغ ہے چراغ ہے چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا۔ چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا کہ میری راہ دے وچ ہے او روشنی کردا۔ تیرا کلام ہے میری ہمیشہ دی میرا، تیرا کلام ہے میری ہمیشہ دی میرا۔ تیرا کلام ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا کہ میری راہ دے وچ ہے او روشنی کردا۔ آؤ ہم کلام پاک کی روشنی میں چلیں، ہالےلویا۔ آؤ ہم کلام پاک کی روشنی میں چلیں۔ عزیز روشنی کے ہتھیار باندھ کر کے ابلیس کا اور اس کی تاریکی کی قوتوں کا مقابلہ کریں، ہالےلویا۔ عزیزو، آج کی روحانی روٹی جو ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے، ان کا تعلق کچھ نبوتی کلام سے ہوگا، پروفیٹک ورڈز جو کہ خداوند اپنے خادموں کے منہ سے نکلواتا ہے اور وہ ان کو پورا بھی کرتا ہے۔ ہالےلویا۔ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے، یہ بائبل مقدس کیتھولک ترجمے کی صورت میں، پروٹیسٹنٹ ترجمہ ہو یا آرتھوڈکس ترجمہ ہو، تینوں کے اندر کلام جو مجسم ہوا ہے، یعنی یسوع مسیح جس نے انسانی جامہ پہنا ہے، عزیزو، ہالےلویا، خدا جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، یہ اس کا زندہ کلام آپ کے سامنے ہے، عزیزو، لکھا ہے۔ اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی اور روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا باپ کی طرف سے بولتے تھے، ہالےلویا۔ عزیزو، آج میں وہ نبوتی کلام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو جب عزیزو اسرائیل کی اور فلسطین کی جنگ کا آغاز پچھلے 2 سال پہلے 7 اکتوبر 2024 کو شروع ہوئی یہ جنگ، اور کل 7 اکتوبر 2025 ہو جائے گا، 2023 کو معاف کیجیے، یعنی 2 سال کے بعد یہ جنگ جو ہے اختتام کو پہنچی ہے۔ اب اس سے پچھلے سال خداوند کے روح نے یہ پروفیٹک ورڈز میرے منہ سے نکلوائے
کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو اس زمین پر ہے اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتی، اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ ڈسپوزل پہ ہے کچھ جو اوپر لائٹ لگانی ہے نا، تو وہ میرے خیال ہے اس کو غلام حسین کو بلا رہے ہیں۔ تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، no power on this planet could, would, should defeat Israel۔ سر آپ کی آواز بالکل بریک ہوگی، کائنڈلی دوبارہ بتائیں، کچھ سمجھ نہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈسپوزل پہ بھائی مائک بند کر لیجئے، بھائی مائک بند کر لیجئے، تھینک یو، ہاللیلویا۔ تو عزیزو، وہ الفاظ جو خداوند کے روح نے اس کمزور انسان کے وسیلے سے نکلوائے تو وہ عزیزو پورے ہوئے، اور خداوند نے، یسوع مسیح نے، یہوہ ادونائی نے، لشکروں کے رب نے اپنے لوگوں کو فتح دی۔ مشرق مغرب شمال جنوب میں انہوں نے رگیدہ لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر جا کر مارا، ایرانیوں کو، یمن کے لوگوں کو، سوریا کے لوگوں کو، اور لبنان کے لوگوں کو، اور بھی ادھر ادھر سے جو ان کو آنکھیں دکھاتے تھے، ان سب پر خدا انہوں نے فتح بخشی ہے۔ ہاللیلویا۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ نبوت کی کوئی بھی بات آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، آدمی روح القدس کی تحریک سے وہ پاک روح ہمارے منہ سے نکلواتا ہے بات۔ اگر ہم اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، اپنے جوش سے کوئی بات کریں گے تو وہ کبھی پوری نہیں ہوگی، لیکن روح القدس کے وسیلہ سے جو کی ہوئی بات ہے، جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہ یقیناً پورے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیوں پورے ہوئے ہیں؟ کیوں خداوند نے اپنی چنی ہوئی قوم کو، کیوں ان کو فتح دی ہے؟ کیا ان کی فتح کے اندر کسی بڑے پہاڑ کا ہاتھ ہے؟ کیا کوئی پہاڑ کوئی ان کو بچا سکتا تھا؟ داؤد یہ سیکھ چکا تھا، مقدس داؤد وہ کہتے ہیں کسی بادشاہ کو اس کی فوج کی کثرت نہیں بچا سکتی۔ فوج کی کثرت بھی، ہتھیاروں کی کثرت بھی، کچھ بھی آپ چیزوں لگا لیں، اس کو نہیں وہ جنگ جدوا سکتی جب تک رب الافواج، فوجوں کا رب جس کے ساتھ نہ ہو، جس کی طرف سے نہ وہ لڑائی کرے۔ جب یشوع نے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری طرف ہوں، اور اپنی جوتی اتارو۔ جب مقدس موسیٰ کو ملے اس وقت بھی انہوں نے اس سے کہا، جب مقدس موسیٰ نے اس جھاڑی کے اندر آگ کو دیکھا تو اس وقت بھی اس نے کہا میں ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں، میں نے اپنی جوتی اتار، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ اور یشوع کو بھی یہی کہا۔ یشوع اس وقت عزیزو 7 قوموں کے خلاف لڑائی کر رہا تھا، تو اس وقت وہ وہاں پر آیا اور ان سے ملا، اور ان کو بھی یہی کہا کہ اپنی جوتی اتارو۔ اب آج یہ ٹاپک ہمارا نہیں ہے، اس لیے میں اس بات کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن جو بات خدا کے روح نے میرے دل میں ڈالی تھی کہ no power on this planet could, would, should defeat اسرائیل۔ اس ارض زمین پر کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسرائیل کو شکست دے سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا آپ کے سامنے۔ اب عزیزو ایک اور نبی کی بات کرتا ہوں۔ اس نبی کا نام ہے آموس نبی۔ اس کا نام ہے آموس۔ جب آموس پہلا باب اور اس کی آپ 4 اور 6 آیت کا مطالعہ کریں گے، وہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے، آموس، ہاللیلویا۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ پرانے ادرمے میں سے، ہاللیلویا۔ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے خداوند خدا فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ خداوند خدا۔
यसु मसीह यानी यूं फरमाता है कि गजा के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि वो सब लोगों को असीर करके ले गए ताकि उनको अदूम के हवाला करें। बस मैं गजा की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके कसरों को खा जाएगी। कसर महलों को कहते हैं। और देखा आपने कि कितनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग थी, खुदा उनके लोग जब चढ़ पड़े तो उन्होंने उनको तहस नहस करके रख दिया। ये आपके सामने अजीजों, ये हमारी नस्ल ने, इस जमाने के लोगों ने देखा है। तो खुदा उनका कलाम जिंदा है, मुअस्सर है और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज। अब अजीजों, जब ये ईरान पर उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने उस फौज का नाम रखा था द लॉयंस ऑफ यूदा, यहूदा के बबर वो निकले हैं। उस फौज का, खुसूसी फौज का नाम था। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम कोई भी जंग, ये तो बहुत बड़ी जंग थी, पूरी दुनिया उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी थी। कोई खुफिया तौर पर लगा हुआ था, कोई हथियार दे रहा था, कोई किस तरह से कर रहा था, लेकिन शुक्र हो हमारे रब्बुल अफवाज का जो अपनी कौम की जंगें लड़ता है। और याद रखें अजीजों, रुए जमीन पर, इस जमीन पर जो इसराइल को बरकत देगा उसको बरकत मिलेगी, जो उस पर लानत करेगा उस पर खुदावंद खुद लानत करेगा। और जिस पर खुदावंद लानत कर दे, वो कोई भी क्यों ना हो, वो कितना बड़ा पहाड़ भी क्यों ना हो, वो कितनी बड़ी फौजें क्यों ना रखता हो, वो कितना बड़ा असला क्यों ना रखता हो, उसकी फौज, उसका असला, उसकी घमंड उसको बचा नहीं सकेगी। ये कलाम का फैसला है। तो आमोस नबी की वो पेशन गोई जो उन्होंने अजीजों की थी, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमोस का लफ्जी मतलब है बोझ या बोझ उठाने वाला, बोझ या बोझ उठाने वाला। अगरचे कि रब्बुल अफवाज यीशु मसीह ही हमारे बोझों को उठाता है, लेकिन इस प्रॉफिट नबी का नाम भी आमोस है, जो कि अपनी कौम का बोझ लेकर के अपने खुदावंद के पास जाता है। और भी बहुत से हवालों के अंदर आपको गजा का नाम मिलेगा। जब शमसून के साथ धोखा हुआ और उसकी बीवी जो थी उसने अपने शमसून के साथ धोखा किया और उसने वो राज जाकर शमसून के दोस्तों को बता दिया, और वो फिर वो पहेली को, वो पजल जो थी उसको वो जीत गए। तो वो अपनी बीवी को हार गया, बीवी हार गया जीजू। और उसके बाद वो फिर जाता गजा की तरफ आता है और उसके बाप ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा कि नहीं, अब तेरा उससे रिश्ता कोई नहीं है। अब जीजू उस वक्त बड़ा परेशान हुआ और उसने 300 लोमड़ियां ली, उनकी दुमों को जोड़ा, उनके ऊपर शमें जलाई और गजा के जो खेतों के अंदर छोड़ दिया और उनकी फसलों के अंदर आग लगा दी। तबाही फेरी उसने भी। किस तरह से वो लाइट आज वो मिसाइल की सूरत में या ड्रोन्स की सूरत में या किसी भी सूरत में वो जाते हैं और तबाही बर्बादी करते हैं। किस तरह से उसने 300 लोमड़ियों का इंतजाम किया होगा, ये एक बहुत बड़ा अजीज सवाल है। ये तो जंगलों में रहने वाली चीज है, इसको पकड़ना कितना मुश्किल, लेकिन उसने वो मुश्किल काम किया। जब रब्बुल अफवाज उसके साथ था तो उसने उस वक्त भी उनको अजीजों उनकी फसलों को आग लगा दी। रब्बुल अफवाज अपनी कौम की जिस तरफ है उसके लिए अजीजों उसको फतह देता है। ये जंग अजीजों, एक और जंग भी उससे पहले मैंने अपनी आंखों से देखी, आपने भी देखी होगी, जिसको अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया था, जिसमें इराक के ऊपर अटैक हुआ, अफगानिस्तान के ऊपर हुआ, लीबिया के ऊपर भी हुआ। और जब इराक के अंदर जब फौजें जब गई तो हमारे साथ जो हमारे दूसरे दोस्त थे दूसरे मज़हब के, खास तौर पर जो आपको पता ही है हमारे जो बहुत जोश से भरे हुए लोग होते हैं, वो नारे मारते थे और वो कहते थे कि इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये तो अब कुफर की और फलां की जंग है। तो मेरे साथ भी एक दोस्त था, मैंने कहा भाई
जिसके साथ रब्बुल अफ़वाज होगा जंग वो जीतेगा। और वो जंग जीती, खुदा उनके लोगों ने जीती और बड़े जोर से खुदा ने उनको बरकत दी और फतह दी है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि रब्बुल अफ़वाज आज भी अपने बंदों और बंदियों के वसीले से नबूवती कलाम करता और उस कलाम की तकमील करता है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और उसके नाम को मुबारक कहता हूं। मुक़द्दस आमूस के लिए भी, जिनके वसीला से वो हमें बात पहुंची, जिसके अंदर लिखा है, आमूस पहला बाब और उसके चौथी और छठी आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि मैं गजा के 3 नहीं बल्कि उसके 4 गुनाहों के सबब से उसको खत्म करूंगा, उस पर आग बरसाऊंगा, उसके कसरों को यानी उसके महलों को, उसकी बिल्डिंग्स को, उसके टावर को बर्बाद कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ है। कलाम पूरा हुआ, कलाम पूरा हुआ, कलाम, क्योंकि नबूवत की कोई भी जो बात जो है आदमी के इख्तियार में नहीं है। अगर मैं कहूं कि नहीं जी मेरे मुंह से ये निकला है इसलिए ऐसा हुआ है, नो, नॉट एट ऑल। पाक रूह ने वो बात मेरे मुंह में डाली और उसने निकलवाई और वो बात पूरी हुई है। मैं जलाल उसको देता हूं। हमें और अजीज फरोतन होने की जरूरत है। और ये रूह कुदस की 9 नेमतों में से एक नेमत है जिसमें है नबूवतें। नबूवतें वो करवाता है। आज भी नबूवतें होती हैं। मैंने पहली दफा लिबिया का भी हवाला दिया है। हमारे पास्टर जी जब जेल में चले गए तो उस वक्त भी खुदा के रूह ने फरमाया, जब हम जेल से बाहर निकले तो यूं ही किसी ने खबर दी कि अब तो ये जिंदा नहीं रहेगा, तो खुदा के रूह ने कहा, और पास्टर जी की मिसेस मेरे साथ थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरी बीवी और उनके बच्चे और बाजी हमारे साथ थी। तो खुदा के रूह ने कहा कि बाजी क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, उनमें से एक भी मेरे आसमानी बाप की मर्जी के बगैर नहीं गिराई जा सकती। तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से ज्यादा है। उनसे मत डरो जो सिर्फ जिस्म को कत्ल करते हैं, उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को कत्ल करके जहन्नम की आग में डाल सकता है। और उसका इख्तियार सिर्फ हमारे यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मौत और आलम अरवाह की कुंजियां उसके पास है। उसने वो छीन ली हुई है इब्लीस से। अब उसका मौत का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और उसी अजीजों उसी सीजन में खुदा के रूह ने दूसरी नबूवत ये करवाई। तो जब मैं चर्च में कलाम की खिदमत कर रहा था तो खुदा के रूह ने कहा, चूंकि जस्टिन ने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। ये पाकरू का काम था, ये मेरा काम तो नहीं था अजीजों। पाकरू निकलवाया और 2 हफ्ते के बाद उनकी बेल हो गई और 6 महीने के अंदर उनका सारा केस क्लियर हुआ। अगर वो पाकिस्तान में होते तो कभी भी ना निकलते और शायद वो इस दुनिया में भी ना होते। एक ऐसा केस उनके ऊपर बना दिया गया। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और उसके नाम को मुबारक कहता हूं। सारा जलाल उसको देते हैं। आइए, आज भी पाकरू के से वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आप पहला अजीजों करंथियों का खत उसका 12वां बाब पढ़े, वहां पर लिखा है रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए। फायदा क्या है, रूहानी फायदा क्या है ईमानदारों को। इसके वसीले से हमें हिकमत का कलाम, अलमियत का कलाम, शिफा देने की तौफीक, जिंदा ईमान यानी वो पहाड़ों को हटाने वाला ईमान जिसके वसीले से आप पहाड़ों को हटा सकते हैं, आप कब्रें खाली कर सकते हैं, आप समुद्रों को चीर सकते हैं। और शागिर्दों ने कहा कि हमारे ईमानों को बढ़ा दे। उन्होंने कहा कि तुम अगर इस तूत के दरख्त से कहो कि वो जा लग तो वो समंदर के अंदर जा लगेगा, लेकिन तुम अपने आप को देखो कि ईमान पर हो या नहीं। हालेलुया। तो रूह कुदस हमारे ईमानों को बढ़ाता है अजीजों। हाले रूह कुदस की जरूरत है मुझे और आपको और हम सबको, जिसके वसीले से अजीजों हाले चौथी नेमत क्या है, जिंदा ईमान। और 5वीं गैर जुबानों का तर्जमा, नबूवतें, मोजज़ात और डिसर्निंग स्पिरिट, रूहों का इम्तियाज। ये है बाइबल की तालीम। इस पर गौर कीजिए अजीजों और इसके मुताबिक अजीजों हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये सब कुछ खुदावंद के लोगों की तरक्की के लिए होता है। अगर आप पहला करंथियों 13वें बाब की स्टडी करें, वहां पर 15 दफा लिखा हुआ है कि जो गैर जुबान में दुआ करता है वो अपने आसमानी बाप से बातें करता है और वो नहीं समझता कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो उसके अंदर कोई मुकाशवा या कोई भेद की बात उसके पास होती है। लेकिन जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। कलीसिया की तरक्की होती है उससे। और नबूवतें करनी किसने, रूह कुदस नहीं करनी है अजीजों। और वहां पर एक ही चैप्टर के अंदर 15 दफा नबूवतें, नई नई जुबानें, बेगाना जुबानों का जिक्र किया जाता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि नहीं जी तो ये तो गैर जुबानें खत्म हो गए, मुकद्दस पौलुस कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। वो कहते हैं जुबानें बोलने से मना ना करो, लोग मना करते हैं। लेकिन अजीजों हालेलुया, हमें हिकमत और दनाई के साथ सब कुछ करना है। जहां पर सारे बोलने वाले हैं बोलिए, जहां पर नहीं है वहां खामोश हो जाए। और नबियों के रूहें नबियों के ताबे भी हैं।
हमें खुदा ने हिकमत और दनाई बख्शी है, हमें उसके वसीले से करने हैं सारे कामों को। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये नबूवती किताब है, नबूवती किताब है जो इसके अंदर नबूवती कलाम लिखा हुआ है, और इसकी तशरी और इसकी तफसीर रुल कुद्दस के वसीला से मुमकिन है। आप दुनिया की जितनी मर्जी किताबें पढ़ लीजिए, आप दुनिया की बड़ी से बड़ी सेमिनरी कर लीजिए, आपको जब तक रूह कुदस का मस्सा नहीं है, यह हकीकी कलाम आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। ये कलाम का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं। इसलिए अजीजों, खुदावंद का रूह ये फरमाता है कि आइए रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए इसको ले लो, और ये मुफ्त है, ये दुनिया के किसी भी कोने में आपको मिल सकता है। आपको ना यरूशलेम जाने की जरूरत है, ना किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, खालिस नीयत से अपने आप को खाली करके उसके पास आ जाएं, तौबा कीजिए अपने गुनाहों से, पानी का बपतिस्मा लीजिए अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, और फिर अजीजों रूह कुदस आपको इनाम में मिलेगा, जिसका निशान गैर जुबानें हैं, तरह तरह की जुबानें हैं, जिसके बहुत से हवाले हैं। आप रसूलों के अमाल चैप्टर 2 और उसके पहले 4 आयत की स्टडी कीजिए। रसूलों के अमाल चैप्टर 10 वर्सेस 44 टू एंड ऑफ द चैप्टर। रसूलों के अमाल चैप्टर 19 उसकी पहली 7 आयत पढ़िए। आप मरकस 16 बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़िए। आप पहला ग्रंथ 12 बाब के अंदर रूह कुदस की 9 नेमतों का जिक्र कीजिए। पहला ग्रंथ 13 बाब के अंदर 2 आयत में लिखा हुआ है। पहला ग्रंथ 14 बाब में 15 दफा लिखा हुआ अजीजों। यशायाह नबी के सहीफा उसका 28 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है। और डैनियल नबी की किताब में तर्जमा किया गया है, जहां पर लिखा मिने मिने मत केरो फरसीन, हाल उसका तर्जमा किया गया। सलीब पर उन्होंने कहा एली एली लमा शबक्तनी, उन्होंने कहा कि एलिया को बुलाता है, लेकिन ऐसा वो तर्जमा वहां पर हुआ है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। हम किसी तरह से इसको रद्द, और अजीजों गैर जुबानों को रद्द करने वाले ये सोचने और ये समझने कि हर गुनाह मुआफ हो जाएगा, पाक रूह के खिलाफ बका हुआ कुफर मुआफ नहीं हो सकता, ना इस साल में, ना आने वाले आलम में, ना इस साल में, ना आने वाले आलम में। इसलिए अजीजों, पाक रूह के बारे में जब आप बात करते हैं, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो मेहरबानी से खामोश रहें, खामोश रहें। खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। और इसके बारे में तकफीर, हर सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, हर किस्म के गुनाह, लेकिन ये गुनाह नहीं माफ होगा। इसलिए मेरे अजीज प्यारे दोस्तों, रूह कुद्दस का मस्सा मेरे और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसको बढ़ाएं, अपने मस्सा को बढ़ाएं। जो जो आप गैर जुबान में मुकद्दस पौलुस में तुम सबसे ज्यादा जुबान बोलता हूं, और जब से तो मस्सा भी कितना अजीजों। और वो कहते कि मैं यक तीसरे आसमान पर चला गया, मुझे नहीं पता बदन समेत या बगैर बदन के, और वहां पर जाकर जो कुछ मैंने देखा है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। और वो कहते मुकाशफों की ज्यादती के सबब से अबलीस ने मेरे जिस्म के अंदर एक कांटा छुपो दिया है, और मैंने 3 दफा दुआ की कि खुदावंद इसको निकाल दे। तो उसने कहा अबलीस के कासिद ने मेरे जिस्म के अंदर कांटा छुपो दिया ताकि मैं अबलीस की तरह फूल करके गिर ना जाऊं। ये था राज उसके अंदर, कि जैसे अबलीस ने कहा 5 दफा, उसने कहा, लूसीफर उसका नाम है, उसने 5 दफा यशायाह नबी के में लिखा कि मैं अपना तख्त हालेलुया खुदा से भी ऊपर लेके चला जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे। खुदा ने उससे पकड़कर जमीन पर गंदगी की तरह फेंक दिया। तो आज वो दुनिया को सताता है। हालेलुया। इसलिए अजीजों, पाक मस्सा अनॉइंटिंग होली स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से, शुरू में भी इसका जिक्र है। पैदाइश पहला बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, इब्तिदा में लिखा है खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, और खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। और फिर मत्ती सूर के अंदर 14 बाब के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु सिरात को पैरों पानी के ऊपर फिर रहे हैं। शागिर्द 12 शागिर्दों ने कहा कोई भूत है, उन्होंने कहा कि डरो मत, मैं हूं। हाले फिर मुकद्दस पतरस डायलॉग करता है, मुकद्दस पतरस कहता है हालेलुया, अगर खुदा तू है तो मैं पानी पर चलूं। उसने कहा चल, उसने चलना शुरू कर दिया। पाखरू बोल रहा है, पाखरू पानियों पर चल रहा है। पाखरू जिस्म रखता है अजीजों, वो जिस्म की सूरत के भी अंदर अजीजों पानियों पर चल सकता है। वो हवा में उड़ा को आपका लेकर जाएगा। वो उसकी प्रेजेंटेशन मसीह ने खुद दी है यरूशलेम के अंदर। सब शागिर्दों को बुलाया, मुकद्दसा मरियम आई, 12 रसूलों के, उन्होंने रसूलों के देखते देखते हाले बदली आई, उसने उठाकर उसको आसमान पर ले गई। हालेलुया, ग्लोरी टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आइए अजीजों, खुदा के पाक रूह को मौका दीजिए, अपने घरों में अपने बच्चों को तैयार करें, अपने बच्चों की फिक्र करें, अपनी बीवी की फिक्र करें। मुकद्दस मूसा कहता है मैं तो जानवर का एक खुर भी गुलामी के घर में नहीं रहने दूंगा। एक खुर भी, उसको जानवरों की फिक्र कर रहा है। उसका खुर नाखन को कहता है पंजाबी जुबान में अजीजों। खुदावंद का पाक रूह ये चाहता है कि मैं और आप रूह से भरकर आगे बढ़ते जाएं। वो नबूवतें भी करवाएगा, वो मौजज़े भी करवाएगा, वो शिफाएं भी हमसे दिलवाएगा। अजीजों, कल चर्च के अंदर खुदा ने एक अजीब काम किया, जर्मन चर्च के अंदर। हालेलुया। वहां पर अजीजों जब हम दुआ कर रहे थे तो एक हमारी प्यारी बहन, जर्मन बहन आई, उसने कहा मेरी बेटी के लिए दुआ करें, वो बड़ी बीमार है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसको वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए दुआ की गई। तो खुदा करूँ ने एडवांस उससे कहा कि सिस्टर तू भी बीमार है,
आप भी बीमार हो सिस्टर जी? तो उसने कहा हाँ मैं भी बीमार हूँ वाकई। तो मैंने कहा आपने अपने लिए दुआ नहीं कराई। तो कहने लगे मेरे पेट 1 साल से मेरे पेट में दर्द है। जब दुआ की गई अजीजों उसने उसी वक्त शिफा पाई। मैंने कहा अपने पेट को दबा के देखें, अपने मैदे को चेक करें। नो मोर keine mehr Schmerzen, keine mehr Schmerzen, no more Schmerzen। जर्मन ज़बान में शिमर्सन दर्द को कहते हैं अजीजों। हालेलुया। मैं टूटी फूटी अजीजों जर्मन समझ ले तो बोल लेता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी है। जब मुझे ज्यादा समझ नहीं तो मैं कहता हूँ फोन कोफ बिस्फुस, यानी खोपड़ी से लेकर पांव तक कोई भी बीमारी है, कोई भी यीशु मसीह के नाम से स्टैम्फर को मैं फ्राई कर देता हूँ, फ्री करता हूँ। हालेलुया। मैं कौन, मेरी हकीकत ही क्या है? ये खुदा की बरकत है, खुदा का एहसान है कि मुझ जैसे निकम्मे बेवकूफ और बेवजूद इंसान को जिसके अंदर एक भी खूबी नहीं वो अपने जिलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं आपके लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि उसके खेत के अंदर मजदूरों की कमी है कि खुदा और मजदूर भेजे, और मजदूर भेजे, और मजदूर भेजे। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अजीजों व्हाट्सएप पर मेरे साथ बहन भाई हैं, अगर उनमें से कोई बीमार या कमजोर है या गवाही देना चाहता है तो गवाही दीजिए जी। अगर आपके पास कोई गवाही हो तो गवाही दीजिए, खुदा का पाक रूह आपको बरकत देगा। जिसके पास बेटा वो अपने पास गवाही रखता है। हालेलुया जी। आप में से कोई बहन भाई जो गवाही देना चाहे गवाही दे सकता है जी। हमारे पास्टर जी ने, पास्टर साहब ने कल गवाही दी थी अजीजों, कल की गवाही। उन्होंने कहा था कि एक बेटा था तो जो जन्म से ही जिसको किडनी का प्रॉब्लम था तो उसका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन डॉक्टरों का भी 2 ऑपरेशन और होंगे। तो जब उसकी मां ने दरखास्त की, हमने मिलकर दुआ की पास्टर जी ने और सारे बहन भाइयों ने, तो डॉक्टरों ने जब चेक किया उन्होंने कहा कि अब इसको किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो इससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं अजीजों। हालेलुया। पास्टर जी के वसीले से एक और गवाही आई थी अजीजों। एक भाई अमेरिका से आए थे, उनके जिगर की प्लांटेशन होनी थी, जिगर का अजीजों उनको मसला था और उनका भाई तो अजीजों कैंसर से निजात पा गया दवाइयों के वसीले से और दुआओं के वसीले से। लेकिन उन्होंने उनका अपनी प्लांटेशन करनी थी। तो मैंने कहा पास्टर जी क्यों नहीं हम दुआ करते कि यही जो जिगर है यही काम करे, इसके मसल मजबूत हो जाएं। और जब उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि इनको तो कोई जिगर का प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। सारा जलाल उसको मिल जाए। और अजीजों फेसबुक पर भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई दरखास्त हो तो हम जरूर उनके लिए भी दुआ करेंगे और खुदा आपकी दुआ को यकीनन सुनेगा, क्योंकि उसके कान रास्तबाजों की दुआ पर लगे रहते हैं लेकिन शरीर उसकी निगाह में है। हालेलुया। रास्तबाजों के लिए उसके कान एकदम वो सुनकर जवाब देता है। हालेलुया। हम उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और कोई बहन भाई जो गवाही देना चाहता है उसके लिए मौका है अजीजों जी। बाजी मरियम का माइक खुला जी। प्यारी बाजी सिस्टर बोलिए। पास्टर मेरे ना गुर्दे में दर्द होती है, ये दाएं गुर्दे में ना, दाएं गुर्दे में यानी किडनी में, दायां किडनी जो है उसमें दर्द होती है, ये डॉक्टर ने बताया या आपने अपने गेस कर लिया बाजी? नहीं मेरे ना पहले एक दफा ना ये साल की बात, 1 साल की, तो मैंने ना अल्ट्रासाउंड कराया था। मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपके ना ये पथरी अभी बन रही है। अच्छा जी। इसके बाद मैंने ना ओके बाजी, दुआ की। ओके बाजी, ओके बाजी, ओके बाजी। अभी दुआ करते हैं जी। अजीज हमारी प्यारी बहन कह रही है कि उसका जो दाहिनी किडनी है, गुर्दा है, उसके अंदर पथरी डॉक्टर ने कहा था 1 साल पहले, तो अब दोबारा फिर उनको दर्द होती है। तो दुआ करते हैं पथरी यीशु मसीह के नाम से डिजॉल्व हो जाए, रेजा रेजा हो जाए, पाक रूह की पाक आग से जल जाए यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त और इसी वक्त राइट नाउ। हालेलुया। ओ हालेलुया। बल्कि खुदा खोपड़ी से लेकर पांव तक मेरी बहन को कहीं जहां कहीं और भी कोई प्रॉब्लम है आप जानते हैं खुदा, आप उन्हें कसरत से बरकत दीजिए और सारा रोग, सारी बीमारी, सारी कमजोरी आपके नाम से जाती रहे। मैं इस हैकल को आपके नाम से आजाद करता हूं। यह हैकल टोटली फ्री, क्योंकि इसलिए इस हैकल के लिए आपने कोड़े खाए हैं, मार खाई है, आपने लहू से खरीदा है, हमारे लिए दुख सहा है। हालेलुया। तेरी बेटी शिफा पा गई है ये बाजी यीशु मसीह के नाम से। ये किडनी का दर्द खत्म हुआ और फॉरएवर, हमेशा के लिए, जब तक आपकी जिंदगी का आखिरी सांस है, खोपड़ी से लेकर पांव तक कोई भी दर्द, कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी नहीं ठहर सकती इस टेंपल के अंदर। फक्त हालेलुया इस टेंपल की हिफाजत कीजिए, इस हैकल की हिफाजत कीजिए, इस गिरजे की हिफाजत कीजिए। जो इस मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद करेगा। और खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो और वो मैं हूं और वो हम हैं अजीजों। इस मकदस के अजीजों हमने देखना है
कि कहीं हम इसको खराब तो नहीं, खुद तो नहीं खराब कर रहे। रूह कुद्दस जिसके अंदर रूह है अजीजो, पाक रूह उसकी खुद ही हिफाजत करता है। हालेलुया। तो खुदा का पाक रूह जी आपको कसरत से बरकत दे। हालेलुया। आप बता सकते हैं कि जब आप बैठे हुए थे, आपको दर्द महसूस होती थी, आपने कहा, हमने मिलकर दुआ की है, पूरे ग्रुप ने दुआ की है और खुदा ने हमारी दुआ को सुना है। वो आजिज़ों की दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता है, उसका शुक्र करते हैं। जी बाजी जी, हालेलुया। खुदा का पाक रूह आपको कसरत से बरकत बख्शे। आमीन। जी बाजी जी। आप ना दुआ देके ना कलाम दे रहे थे, पहले मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तो जब आप कलाम दे रहे तो मेरी तबीयत सेट हो गई। हालेलुया। अजीजो प्यारी बहन कह रही है कलाम के दौरान ही मेरी तबीयत सेट हो गई। तो खुदा का शुक्र हो कि पाक रूह अजीज वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर हमें शिफा देता है। हालेलुया। तेरा कलाम मेरी हड्डियों के लिए सेहत है, तेरा कलाम मेरी नाफ के लिए सेहत है और तेरा कलाम मेरे सारे जिस्म के लिए शिफा है। और अगर आप ना मुझे शिफा दो तो मुझे कौन शिफा दे सकता है? और आप ही मुझे शिफा दो तो मैं शिफा पाऊंगा, और आपके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया। प्रेज द। आइए रूह कुद्दस के लिए जोरदार ताली, रूह कुद्दस के लिए जोरदार ताली, रूह कुद्दस के लिए जोरदार ताली। जो जमीन पर हमारा मददगार है, वो जमीन पर हमें कलाम सिखाता है, वो जमीन पर हमें भूला हुआ भी याद करवाता है, वो हमें फ्यूचर की खबरें देता है, वो प्रोफेटिक वर्ड्स देता है, जैसा कि आज हमने उस गवाही को आपके सामने रखा है। अब बाद में भी बहन भाई सुनेंगे और वो बहुत बरकत पाएंगे कि खुदा का पाक रूह आज भी कमजोरों को, आजिजों को, हकीरों, फकीरों को, किसी को भी जो रूह के ताबे है उससे काम ले सकता है। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से, इन गवाहियों के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। थैंक यू अजीजों। तो अजीजों, फेसबुक पर जो मेरे बहन भाई मैं उनके लिए बरकत के कलमात बोलता हूं ताकि फिर उनसे मैं इजाजत ले सकूं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुद्दस की शराकत जो तीनों एक हैं, मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा बनी इसराइल का ख्रिस्तुस यानी मसाया हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली के चेहरा सदा हम पर जलवागर रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे और आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ ओस की तरह, रुई के गालों की तरह और बारिश की तरह हम सब पर निशावर होती रहे। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगी और हम हमेशा मसीहा खुदावंद का घर नया यरूशलेम जो आसमान पर है सुकूनत करेंगे। ऐज़ीज़ो, हमारी रूह बदन जान मसीहा के आने तक और हमारे वापस आसमान जाने तक और कलीसिया के रैप्चर टाइम तक पूरे पूरे कामिल, बेऐब, बेदाग, बगैर झुरी और बगैर किसी और चीज के पाक रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही कहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से अजीजों मैं आप सबको सलाम कहता हूं। पाकिस्तान वाले बहन भाइयों के लिए अजीजों, चूंकि रात वहां पर हो चुकी है, गुड नाइट मेरी तरफ से। यूरोप वाले बहन भाइयों के लिए गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।